Hi friends, we continue with the study of motion of sphere in a fluid. Now we have seen in the previous lecture that when a sphere enters a fluid, when a sphere moves in the fluid with a speed v, then a viscous force acts on it. अब उसी स्फीयर के मोशन के बारे में बात करते हैं इन द फ्लूइड. ओके, लेट अस सपोज there is a fluid surface and these are the vertical laminas of fluid. Here is the sphere which is falling down. When the sphere is falling down, a force, gravitational force acts on it, Fg. So forces acting on sphere कौन से होंगे? तो सबसे पहला वेट फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स which will be in downward direction and it will be given as Fg is equal to mg. Okay, mass into gravitational acceleration. So when the sphere is outside the fluid, only one force acts, that's gravitational force. Okay, when the sphere just enters the fluid, वेट फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर, उसके अलावा एक और फोर्स एक्सिस्ट आता है, दैट इज buoyancy force in upward direction, Fb. तो second type of force acting is buoyant force and this buoyant force acts in upward direction. कितना होता है? तो Fb is given as m0g, where m0 is the mass of the liquid displaced. Okay, then when it is inside the fluid, further traveling inside, at that time three forces act. एक तो Fg downward direction में, दूसरा Fb in upward direction, and the third force Fv acts in upward direction. So third force is nothing but viscous force due to fluid. So third is viscous force in upward direction. Now viscous force in upward direction, that is given as Fv equal to 6 pi eta Rv. Now here remember well, weight force is always in downward direction, buoyant force always opposes the weight force, and viscous force is in direction opposite to the motion. Right now motion is occurring in downward direction, therefore viscous force is acting in upward direction. Okay, so these are the three forces acting on the block. Now तीन cases देखते हैं. Case 1, when sphere outside fluid, when sphere is outside the fluid, only one force acts. कौन सा? That is Fg. Case number 2, when sphere, ये केस नंबर 1 कौन सा है? ये वाला है केस नंबर 1. केस नंबर 2, when sphere just enters the fluid, उस केस में two forces act, and that is Fg and Fb. Okay, and case number 3, when sphere moving inside fluid, in this case three forces act. कौन से? That is Fg, Fb and Fv. All the three act. Case number 1, case number 2 and case number 3 in the figure. Okay, अब जब वो बाहर आ रहे हैं तब तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन g है, पर जब एंटर होता है तब मोमेंटरी स्टॉप होकर फिर शुरू होता है. Here when it just enters, velocity is 0. इसका इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एट व्हेन इट जस्ट एंटर्स द फ्लूइड. तो फ्लूइड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर इज 0, पर इनिशियल एक्सेलरेशन तो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेट्स ऑब्टेन द फार्मूला फॉर दिस एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन. तो पहला फार्मूला हम ले रहे हैं इनिशियल एक्सेलरेशन का. लेट्स से a 0 फॉर इनिशियल. नाउ व्हेन, इसमें क्या बोलेंगे? व्हेन स्फीयर just enters fluid, that is the situation of initial. Just enters fluid, two forces act. कौन से? That is Fg and Fb. Therefore resultant force क्या आएगा?
रिजल्टेंट फोर्स F0 इनिशियली है, इससे F0 बोल दिया, इज इक्वल टू Fg माइनस Fb. Now here F0 is mass into initial acceleration, बराबर है, and mass of the sphere can be given as volume into density of the sphere into A0. Here rho is the density of the sphere, material of the sphere. Secondly Fg is mg, that is volume into density into g. अरे ये वेट फोर्स हो गया. तीसरा buoyant force, तो Fb given as m0 into g, so this will be volume same according to Archimedes principle. The volume of the sphere entering and the liquid displaced is same. जितना वॉल्यूम का स्फीयर एंटर होगा उतने वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस होगा. एंड हियर वी आर टेकिंग मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लेट्स से रो 0, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेट्स से रो 0, तो v इनटू रो 0 इनटू g रख देते हैं इक्वेशन 1 में. तो लेट्स से इक्वेशन 1, दीस आर इक्वेशन 2, तो यूजिंग 2 in 1 व्हाट वी गेट इज ma0 is equal to v rho a0 is equal to v rho g minus v rho 0g. v तो कैंसिल हो गए दोनों साइड. नाउ व्हाट वी गेट इज v तो कैंसिल हो गया, तो रो a0 इज इक्वल टू, यहाँ पे g कॉमन निकलेगा, रो माइनस रो 0 डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय v हटा कैंसिल हो गए दोनों साइड, तो बचा रो a0 इक्वल टू रो g माइनस रो 0g, उसमें g कॉमन ले लिया. नाउ व्हाट वी वांट इज इनिशियल एक्सप्रेशन a0, दैट इज g इनटू रो माइनस रो 0 डिवाइड बाय रो. ये इनिशियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आ गया. इनिशियली कितने एक्सेलरेशन से बॉडी अंदर स्फीयर अंदर एंटर होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर उसका इनिशियल एक्सेलरेशन तो होगा ही, तो ही वेलोसिटी बढ़ेगा एज इट गोज अहेड. ओके, एंड कितना इनिशियल एक्सेलरेशन है, वही है फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट बोर्ड एग्जाम, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, पिछले साथ में करवा दिया. चलो पहला तो ये देख लिया इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है. अब देखते हैं जब वो अंदर मूव कर रहा था स्फीयर की क्या सिचुएशन है. तो वी विल नॉट डिस्कस मूवमेंट ऑफ द स्फीयर इनसाइड द फ्लूइड में मूव करता है, तब उसकी सिचुएशन क्या है वो देखते हैं. ओके, तो चलते हैं केस नंबर 3 वाला केस, व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड द फ्लूइड. जस्ट गो थ्रू दिस मच पार्ट. अगला टॉपिक ले रहे हैं मोशन ऑफ स्फीयर इन फ्लूइड में व्हेन स्फीयर मूविंग इनसाइड द फ्लूइड. इससे मार्क कर लें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रेगुलरली आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, 11th के फाइनल एग्जाम में बोलो या लोकल टर्म एग्जाम में ये नॉर्मली पूछा जाता है, इसलिए इस पे concentrate more. And secondly, this is the application we use in our daily life also. Okay, तो ये one of the important question topic हो गया. अब when sphere is moving inside the fluid, when sphere moving inside fluid, three forces act. कौन से? Fg, Fb एंड तीसरा विस्कस फोर्स भी आ जाएगा, क्योंकि अब उसकी स्पीड है इसलिए उसके पास विस्कस फोर्स भी है. ओके, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्फीयर विल बी, क्या है रिजल्टेंट फोर्स, दैट्स Fr इक्वल टू Fg माइनस Fb माइनस Fb. नाउ वी वेरी वेल नो दैट, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. We very well know that Fg यानी weight force is nothing but m into g, and this is nothing but volume into density of the sphere into g. दूसरा Fb buoyant force is m0 into g. m0 मतलब mass of the liquid displaced. buoyant force is mass of the liquid displaced into g. अब mass of the liquid displaced कितना, volume same as the sphere, तो sphere का volume वही volume according to Archimedes principle. According to Archimedes principle, the volume is same, mass नहीं. Volume of the sphere entering and volume of the liquid displaced is same. Density यहाँ पे liquid के लिए नहीं पड़ेगी, rho 0. Okay, तो rho is the density of material of the sphere, rho 0 is the density of material of the fluid. फिर third force है Fv and that's 6 pi eta Rv, where v is the speed by which the body sphere is moving. ये set of equation 2, let's place it in 1, putting 2 in 1, what we have is Fr
रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज इक्वल टू एफ जी यानी वी रो जी माइनस एफ बी। क्यों ये माइनस किया? क्योंकि अपवर्ड है, डाउनवर्ड मोशन अगर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो एफ बी एंड एफ बी नेगेटिव हो गए, माइनस वी रो जीरो जी एंड तीसरा माइनस 6 पाई ईटा आर बी। ओके, नाउ एज द स्फीयर मूव्स अहेड, एज स्फीयर मूव्स अहेड, लिक्विड में जैसे जैसे स्फीयर आगे बढ़ता है, इज वी इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। हाँ सर फिगर में तो ऐसा दिखा है, नहीं नहीं, तो फिगर में तो थोड़ा साइज ऑफ एग्जैक्ट तो बनाते नहीं है, इससे क्या बोलेंगे, एज इट मूव्स अहेड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल नॉट चेंज, डेंसिटी ऑफ मटेरियल स्फीयर नहीं, वो भी चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं स्टील का स्फीयर डाला और नीचे सोने का बन जाए, नॉट एट ऑल। तो स्टील का स्फीयर तो स्टील ही रहेगा, यानी कि डेंसिटी विल रिमेन द सेम, जी तो कांस्टेंट ही है, वी अगेन सेम, रो जीरो फ्लूइड का क्वेश्चन, रो जीरो फ्लूइड की डेंसिटी वो भी यूनिफॉर्म है थ्रू, जी तो कांस्टेंट है, 6 पाई कांस्टेंट, ईटा क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड वो भी फिक्स है, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर, एज इट कम्स डाउन डज द रेडियस ऑफ द स्फीयर चेंज, नॉट एट ऑल। V be constant, नहीं, V is increasing as it goes ahead. Initially the speed was 0, but due to acceleration it is increasing speed. The speed of the sphere is increasing. As the sphere moves ahead, V increases. अब V बढ़ेगा, यहाँ पे V बढ़ रहा है, ये एक क्वांटिटी है जो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो माइनस है तो this will decrease. Therefore FR decreases. FR decreases. Resultant force कम होगा. Now at for certain value of V, FR becomes 0, डिक्रीज होकर 0 हो जाता है। For a certain value of V, FR becomes 0. FR 0 का मतलब क्या हुआ? Mass into acceleration 0, force 0, resultant force 0 होता है, mass into acceleration 0. Now, as mass cannot be 0, because mass cannot be 0, therefore acceleration has to be 0. अब acceleration 0 होगा मतलब speed constant हो गई, मतलब speed is constant. तो at a juncture when FR becomes 0, as the sphere moves ahead, उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ रही, v बढ़ रहा है, तो FR कम हो रहा है, FR कम होकर कितना होगा? 0 होगा, 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, सो नो फर्दर इंक्रीजिंग v, यहाँ पे आने के बाद नो फर्दर इंक्रीजिंग v, यानी FR 0 होगा तब स्पीड कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट हो गई तो उसके बाद नो फर्दर इंक्रीज, तो ये फर्दर इंक्रीज नहीं होगा तो FR फर्दर डिक्रीज नहीं होगा, यानी FR विल नेवर बिकम नेगेटिव, FR विल नेवर बिकम नेगेटिव, 0 इज द लोएस्ट वैल्यू। तो मतलब ये हो गया कि v बढ़ते बढ़ते v इज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए इसको दूसरे में हम लोग यूं भी बोलते हैं vt, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड यानी आखिरी एंड, इसको एंड स्पीड भी बोलते हैं, एंड स्पीड बोलते हैं। मैक्सिमम स्पीड हो रही है क्योंकि बढ़ रही है स्पीड, बस इससे आगे नहीं बढ़ेगी, क्यों? फर्दर इंक्रीजिंग vt विल नॉट टेक प्लेस, फर्दर इंक्रीजिंग v विल नॉट टेक प्लेस, एंड इसलिए ये एंड वेलोसिटी हो गई या टर्मिनल वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। ओके, इसको vt टर्मिनल स्पीड का नाम दिया है। मतलब क्या, जब FR इज 0 तब v इक्वल टू vt, हमें ये vt का फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसको डाल देते हैं, तो यूजिंग FR इक्वल टू 0, v इक्वल टू vt इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा, 0 इक्वल टू v रो g माइनस v रो 0 g माइनस 6 पाई ईटा आर vt। आवर टारगेट इज टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर vt, तो इसको लेफ्ट साइड पे लेते हैं, तो 6 पाई ईटा आर vt इज इक्वल टू v रो g माइनस v रो 0 g। ना इसमें v यानी g कॉमन निकलेगा, v इज द वॉल्यूम, g इज द ग्रेविटी सेक्शन, रो माइनस रो 0, ये 6 पाई ईटा आर vt। नाउ दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू रो माइनस रो 0, लेफ्ट साइड पर रखते हैं 6 पाई ईटा आर vt। अब हमें चाहिए vt का फॉर्मूला, पाई पाई कैंसिल हो गया, एक आर गया, 2 आर बचे, बराबर है, 6 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2/9, therefore what we get is vt is equal to 2/9 r square g by eta rho minus rho 0. That is the formula for terminal velocity. यानी sphere will not suffer in increase in velocity beyond vt.
यानी एज स्फीयर कम्स डाउन उसकी स्पीड बढ़ती है, वीटी होगी, वीटी होने के बाद वो फर्दर नहीं बढ़ेगी, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा एंड दिस अचीव्स विद इन फ्रैक्शन सम सेकंड्स, वेरी फ्यू सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो वीटी का वैल्यू 10 हो जाए, बाद में उसकी स्पीड फर्दर डज नॉट इंक्रीज, फिर इट कंटिन्यूज टू मूव विद कांस्टेंट स्पीड, नो फर्दर इंक्रीज इन स्पीड। बराबर है, ये वीटी का कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब ये फॉर्मूला हम लोग वीटी फाइंड करने के लिए करते हैं नहीं, प्रैक्टिकल्स में वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ईटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 2/9 r² g/vt इंटू रो माइनस रो जी। आप प्रैक्टिकल में इस फॉर्मूला को यूज करते हैं टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी। होप यू रिमेंबर कि आपने प्रैक्टिकल्स में एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी है जिसमें ऐसे एक ट्यूब है, लिक्विड भरी हुई, ग्लिसरीन होता है या फिर पेस्टर ऑयल होता है, लिक्विड भरी हुई ग्लिसरीन या फिर पेस्टर होता है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है ग्लिसरीन और पेस्टर ऑयल। फिर यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ दूसरा मार्क करते हैं, ये फाइनल पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्री डिटरमाइन होता है, नॉर्मल यूजुअली 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर होता है। यहाँ से स्फीयर को रिलीज करते हैं, वो स्फीयर अंदर जाता है, यहाँ पे आए तब स्टॉपवॉच शुरू करते हैं एंड यहाँ पे आए तब स्टॉपवॉच बंद करते हैं। यहाँ पे आए तब ये पॉइंट से पास हो तब स्टॉपवॉच शुरू करने का, ये पॉइंट पे पहुंचे तब स्टॉपवॉच बंद करने का एंड वी फाइंड द टाइम इंटरवल टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। उस पर से स्पीड मिल जाएगी। अब ये स्पीड टर्मिनल स्पीड होगी डेफिनेटली, क्योंकि ऊपर थोड़ा और है फ्लूइड, तो उसमें से पास होते इट विल अचीव द टर्मिनल स्पीड, यानी इतने डिस्टेंस में ही स्फीयर, इसलिए ये मार्क से ऊपर फ्लूइड का होना जरूरी है। तो जैसे ही फ्लूइड गिरेगा, सॉरी स्फीयर गिरेगा, इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसका इट विल अचीव विद इन दिस डिस्टेंस विल बी अचीविंग टर्मिनल स्पीड एंड फिर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा एंड दैट कांस्टेंट स्पीड वी फाइंड आउट यूजिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम कवर्ड, टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ये डिस्टेंस भी हो गया, यूजुअली 0.5 मीटर होता है एंड टाइम टेकन ले लेते हैं, तो हमें स्फीयर की स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पे एज अ स्फीयर वी यूज दो स्फीयर्स, स्टील स्फीयर्स ऑफ बॉल बेयरिंग, उसका यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, वीटी मिल गया, रेडियस ऑफ स्फीयर तो मालूम है, माइक्रोमीटर स्क्रू या स्क्रू गेज लेके फाइंड कर सकते हो। जी का वैल्यू नोन है, और वो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर वी नो वेरी वेल, और रो जीरो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच वी हैव टेकन वो भी हमें मालूम है, तो वी कैन गेट द क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। दिस इज द प्रैक्टिकल application of this and we do this practical. It's a practical title, use of Stokes law to find question of viscosity of the fluid. Okay, and यही बात आप लोग डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप बहुत हाई लेवल पर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो इनिशियली इसकी स्पीड बढ़ेगी, बाद में इट विल कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। फिर ऐसा लगेगा जैसे वो स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन नहीं हुआ है, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, नो फर्दर इंक्रीज इन स्पीड। यानी ऊपर से अगर चीज गिरती है, ऑब्जेक्ट गिरता है, तो कुछ एक डिस्टेंस तक उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर बाद में इट अचीव टर्मिनल स्पीड, बढ़ के टर्मिनल स्पीड आ गई, फिर बाद में तो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता है एंड नॉर्मली इट हैपेंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। इसके बाद आपको आइडिया आ गया कि स्काई डाइविंग में क्या होता है। व्हाट हैपेंस इन स्काई डाइविंग, यू आर टेकन टू हाइट अराउंड 10,000 फीट, वहां से फिर आपको ड्रॉप किया जाता है विदाउट ओपनिंग पैराशूट, यू आर फ्रीली फॉलिंग, बराबर, वहां से आपको ड्रॉप किया जाता है, आप फ्रीली फॉल हो रहे हैं। इनिशियली आपको डर लगेगा जोरदार कि अगर तो स्पीड से जा रहा हूं मैं तो गया नहीं, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल अचीव टर्मिनल स्पीड। फिर बाद में आप कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि आप फास्ट भाग रहे हैं, क्योंकि स्पीड बढ़ ही नहीं रही अब। तो कुछ एक डिस्टेंस पे यू अचीव टर्मिनल स्पीड एंड देन यू कम फ्लोट डाउन हो रहे, जैसे यू मूविंग स्टेडीली, यू हैव एम्पल टाइम टू गो डाउन, बराबर है। फिर कुछ एक हाइट पे आओ तो आपको पैराशूट खोल देना है, तो प्रॉपर है, यानी ड्यूरिंग दैट पार्ट यू आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यू एंजॉय द लव ऑफ डाइविंग इन एयर, दैट स्काई डाइविंग एंड इट्स रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ, याद रखना, जैसे ही कूदे पैराशूट नहीं खोलना है, पैराशूट खोलना है कुछ एक हाइट पे ही, नहीं तो कूदोगे खोल दिया था पैराशूट डर में तो पता नहीं आप कहाँ लैंड करेंगे, शायद दूसरी कंट्री में भी लैंड कर लो। तो इसलिए बी केयरफुल, डोंट ओपन द पैराशूट इनिशियली, कुछ एक डिस्टेंस के बाद जब आपको लगे जमीन से थोड़ा प्रॉपर हाइट पे है एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम टू ओपन द पैराशूट, डोंट वरी, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू ओपन द पैराशूट, बिकॉज स्टेडी स्पीड के कारण आप आराम से आ रहे हैं। सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू डाइव इनसाइड अ स्विमिंग पूल। अगर स्विमिंग पूल में डेप्थ ज़्यादा हो, वहाँ पे पता लगता है कि जैसे आप डाइव करते हैं तो इनिशियली आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, फिर बाद में ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड होता है, आप आराम से टर्न मार के आ जाते हैं, बराबर, आपकी स्पीड बाद में कांस्टेंट हो जाती है। फ्लूइड के अंदर मोशन की बात हो गई, क्लियर। ये हो गया रिगार्डिंग मोशन ऑफ फ्लूइड इन द स्फीयर। ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी है,
जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है 5 मार्क का होता है, जिसमें बोलते हैं कि एक्सप्लेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर व्हाइल मूविंग इनसाइड द फ्लूइड एंड यूजिंग दैट ऑब्टेन द फार्मूला फॉर टर्मिनल स्पीड। यूजिंग दैट ऑब्टेन द फार्मूला फॉर टर्मिनल स्पीड, यानी फोर्सेस को डिस्कस करके इतना ऐड कर दो यहाँ तक। हाँ, फिर लिख सकते हो दिस फार्मूला कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फिर करके ये फार्मूला दे दो। क्लियर? ये हो गया रिगार्डिंग मोशन ऑफ स्फीयर इनसाइड द फ्लूइड। फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, मे बी गैस, मे बी लिक्विड। स्फीयर भी कोई भी मटेरियल का हो सकता है, कोई भी सॉलिड मटेरियल का हो सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि व्हाई एयर बबल मूव अपवर्ड्स इन सोडा वाटर बॉटल। सोडा वाटर बॉटल में एयर बबल अपवर्ड क्यों आते हैं? अब एयर बबल यानी क्या? इट्स अ स्फीयर ऑफ मेड ऑफ एयर मूविंग इनसाइड सोडा वाटर, इट्स अ फ्लूइड। तो सोडा वाटर में स्फीयर ऑफ एयर इज मूविंग, एयर अ स्फीयर मेड अप ऑफ एयर इज मूविंग इन सोडा वाटर बॉटल। अब एयर यानी गैस है यहाँ पे, यानी यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड है। गैस एंड लिक्विड को देखो तो उसमें से लिक्विड का डेंसिटी हाई होता है, गैस का डेंसिटी लो। तो इन केस ऑफ एयर बबल इनसाइड सोडा, रो इज लेस देन रो जीरो। फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्फीयर की डेंसिटी, एयर का बना हुआ स्फीयर यानी एयर बबल। अब रो इज लेस देन लो जीरो, तो देयर व्हाट विल हैपन हियर, दिस डिफरेंस विल गो नेगेटिव। तो रो माइनस रो जीरो विल बी नेगेटिव। अब नेगेटिव होगा तो टर्मिनल स्पीड भी नेगेटिव होगी। टर्मिनल स्पीड नेगेटिव मतलब क्या हुआ? अपवर्ड मोशन, चला। इसलिए सोडा वाटर बॉटल मूव्स अपवर्ड इन अ एयर बबल मूव्स अपवर्ड इन अ सोडा वाटर बॉटल। ओके, तो ये हो गया इसके साथ कनेक्टेड एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एयर बबल मूव अपवर्ड इन सोडा वाटर बॉटल। इट कैन बी फॉर 2 मार्क और 1 मार्क। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग मोशन ऑफ स्फीयर इनसाइड अ फ्लूइड। So friends, let's now take some numericals connected to this viscosity. उसमें सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग illustration 10.10. The question says somewhat like this: the terminal velocity of a copper ball of radius 2 millimeter falling through a tank, radius दिया हुआ है 2 millimeter sphere का, falling through a tank of oil at 20 Celsius is 6.5 centimeter per second. टेम्परेचर 20 सेल्सियस है, टर्मिनल स्पीड उसकी 6.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर बोले कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट 20 सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है, ये लिक्विड का डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी। फिर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है, कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ है, एंड बोला क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी ढूंढ दो ना। ये तो टर्मिनल स्पीड वाला ही फॉर्मूला हो गया। हमने टर्मिनल स्पीड के फॉर्मूला पर से लिखा था ईटा इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन वी टी इंटू रो माइनस रो जीरो। सारी वैल्यूज अवेलेबल है, आर दिया हुआ है, वी टी दिया हुआ है, जी तो 9.8, रो भी दिया, रो जीरो भी दिया, आ जाएगा दिस मच। क्वेश्चन इसका यूनिट क्या आता है? तो न्यूटन सेकंड अपन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। ओके, चलो फिर चलते हैं इलस्ट्रेशन 10.9 की तरफ। 10.9 में आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें। Here say that a metal block of area 10.1 meter square is connected to a 0.01 kg mass via a string that passes over an ideal pulley considered to be massless and frictionless as shown in figure। बाजू के फिगर में दिया हुआ है the body is pulled, a liquid the film thickness of 0.3 mm is placed between the block and the table। When released the block moves to right with constant speed of 0.085 meter per second। फिर बोला है find the quotient of viscosity of the fluid। नाउ सिचुएशन आपको यूं दिया हुआ है, ये टेबल के सरफेस पे यहाँ वो ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट एंड टेबल के सरफेस के बीच में यहाँ वो लिक्विड का एक फिल्म है, पतला सा लिक्विड का फिल्म है। अब ये इसकी स्पीड v कितनी है, लेंथ ऑफ दिस हाइट ऑफ दिस लिक्विड फ्लूइड लेयर इज 0.3 मिलीमीटर, एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस दिस एरिया इज गिवन 0.1 मीटर स्क्वायर, एंड इसका मास कितना है अच्छा इसे कितना मास पुल कर रहा है थ्रू द पुली, मास पुलिंग इट इज m, तो mg फोर्स लग रहा है, यानी कि यहाँ पे mg जितना फोर्स लग रहा है ना। फॉर्मूला ये फोर्स पुल्स द बॉडी अगेंस्ट द विस्कोसिटी, तो फॉर्मूला विस्कस फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी, सॉरी दैट फॉर सॉलिड स्फीयर इट इज ईटा ए वी बाई एल, फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? ईटा, तो मेकिंग ईटा द सब्जेक्ट का फॉर्मूला यू गेट एफ वी इंटू एल अपॉन ए इंटू वी। ए भी है, वी भी है, एल भी है। अब एम की बात, एफ बाकी है, एफ वी, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स कितना लगेगा? इक्वल टू एम जी स्टेडी मोशन के लिए,
तो एफ इक्वल टू एम जी इंटू एल अपॉन ए इंटू वी, सारी वैल्यूज दी हुई है, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये हो गया रिगार्डिंग 10.9, बराबर है। जस्ट गो थ्रू दिस, पर चलते हैं 10.13 की तरफ। एक्सरसाइज का 10.13 ले रहे हैं इसके बाद। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्सरसाइज का 10.13। क्वेश्चन कुछ ऐसा बता रहा है कि ग्लिसरीन फ्लोज स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकंड एट वन एंड इज 4 × 10⁻³ kg per second, what is the pressure difference between the two ends of the tube? Density of glycerin दिया है, velocity viscosity of glycerin दिया है। You may also little like to check if the assumption of laminar flow is true। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया है, रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया है, मास ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकंड, p = 1 सेकंड में कितना लिक्विड पास हो रहा है वो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है एंड क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, जो ग्लिसरीन पास हो रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा, देखो दिस इज द ट्यूब, यहाँ से ग्लिसरीन एंटर हो रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है ना, ग्लिसरीन यहाँ से यहाँ बाहर आएगा, बट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लैमिना of the fluids moving and so viscous will be generated between the layers, okay, it will be cylindrical layers here, so that viscous force generated will be opposing the flow, ये viscous force will oppose the flow। अगर हमें flow continue करना है तो we have to work against this viscous force, यानी कि हमें इस viscous force के against में force चाहिए। see, for the glycerin to continue flowing through the pipe against viscous force some external force will be required, and वो कौन देता है, तो यहाँ का pressure P1 बोल दो, यहाँ का pressure P2 बोल दो, लिक्विड का P1 bigger than P2 has to be maintained। आपको इनकमिंग फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि यहाँ से बाहर आए, बराबर। इट इज नेसेसरी टू कीप हायर प्रेशर हियर एज कंपेयर टू दिस वन, इसलिए नॉर्मली ये जहाँ से एंटर हो रहा है वो टैंक ऊपर रखते हैं, ऊंचा रखते हैं, तो वहां से आपको प्रेशर मिलता है ड्यू टू हाइट, एंड सो लिक्विड करंट इज फ्लोइंग अगेंस्ट द विस्कस फोर्स, अगेंस्ट द विस्कस फोर्स लिक्विड इज एबल टू फ्लो ना। एक लॉ है जिसको बोलते हैं पॉइजलीज लॉ, एक साइंटिस्ट नेम पॉइजली who has given this law। तो according to Poiseuille's law उन्होंने क्या बोला कि the volume of liquid coming out per second, volume of liquid coming out per second or flowing through the fluid per second which is also called as volume flux। volume flux को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से बड़ा V, and that is volume coming out per unit time and it is given as pi t r raised to 4 upon 8 eta। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, no need to go into proof of that, okay। volume coming out per unit time is given as pi into p, p is the pressure difference, here p is the pressure difference, p1 minus p2, उसको pressure difference p बोलते हैं, r radius of the tube, eta portion of viscous fluid and l is the length of the tube, okay। हमें फाइंड क्या करना है, eta नहीं सॉरी p फाइंड करना है pressure difference, तो p will be equal to 8 eta n into volume v upon pi r raised to 4t। अब देखो ईटा भी दिया हुआ है आपको, एल भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, वी वॉल्यूम कमिंग आउट पर, वॉल्यूम कहाँ से लाएंगे, वो गड़बड़ हो गई। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मास दिया हुआ है ना, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में भी मास अपॉन डेंसिटी, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 8 ईटा एल मास अपॉन डेंसिटी पाई आर स्क्वायर आर रेज़ टू 4t, हो गया। t 1 सेकंड दिया हुआ है, आर भी रेडियस भी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, दैट्स ऑल, यू विल बी गेटिंग एट दिस मच फास्टर, प्रेशर डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, ओके। तो हो गया सम नंबर 10.13, वॉल्यूम फ्लक्स का फॉर्मूला है एंड वी गेट दिस विद द प्रेशर डिफरेंस, ओके। नाउ दीस थ्री आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर कनेक्टेड विद द विस्कोसिटी। इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशन के ये तीन न्यूमेरिकल्स हैं जो विस्कोसिटी के साथ कनेक्टेड हैं, जो हमने यहाँ पे मोशन ऑफ स्फीयर के साथ में एज वेल एज फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑन ग्राउंड सरफेस, उन दोनों के साथ कनेक्टेड ले लिया, एंड थ्रू अ ट्यूब, तीन हुए, ये इनसाइड द फ्लूइड मूविंग स्फीयर, ये सरफेस पे मूव कर रहा है स्फीयर के ऊपर, सॉरी फ्लूइड के ऊपर बॉडी मूव कर रहा है उसके बारे में, एंड तीसरा ट्यूब में से फ्लूइड जो पास हो रहा है उसके बारे में, ओके। देख लीजिए, दैट्स नेक्स्ट चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। ना रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने टू नो द टाइप ऑफ फ्लो, नाउ वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, वी आर सीइंग टाइप्स ऑफ फ्लो। एक तो लेते हैं हम लोग स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो हमें से कोई भी नाम दे सकते हैं।
एंड दूसरा टाइप का फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो. So these are the two types of flow which we had studied. Now which type of flow will a given fluid have? For that रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने कुछ वर्क किया and from his work Reynolds obtained a formula that is RE which is given as rho VD upon eta, where rho is the density of the fluid, V is the speed of the fluid, D is the diameter of tube in which it is moving, eta is coefficient of viscosity of the fluid. तो ये फॉर्मूला जो है ये ऐसा फॉर्मूला बनता है जो यूनिटलेस डायमेंशनलेस है. इट डज नॉट हैव यूनिट नॉट डायमेंशन और डायमेंशनलेस. यूनिटलेस या डायमेंशनलेस. अब यानी कि इट्स प्योर नंबर, दिस बिकम्स अ प्योर नंबर. प्योर नंबर उसको नाम दे दिया रेनॉल्ड नंबर डिवाइडेड बाय आरई. रेनॉल्ड नंबर हो गया. इट्स प्योरली अ नंबर व्हिच डिटरमाइंस द टाइप ऑफ फ्लो. ओके एंड इसमें क्या बोला हुआ है कि व्हेन आर इज लेस देन 1000 तो द फ्लो इज स्टेडी और वी कैन कॉल इट स्ट्रीमलाइन और इट इज आल्सो गिवन एज लैमिना फ्लो. ओके एंड अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 हो जाए तो दैट्स कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो. आप क्वेश्चन उठेगा 1000 2000 के बीच में हो तो मिक्स्ड, इन दोनों का मिक्स्ड फ्लो. ओके सो दैट्स रेनॉल्ड नंबर. And Reynolds number is given as inertial force upon viscous. It's a ratio of inertial force and viscous force. Reynolds number determines the type of flow. It helps in determining the type of flow. And इसके अंदर क्वेश्चन विस्कोसिटी इन्वॉल्व है. इसलिए क्या होगा देखो, if a fluid has low viscosity, if a fluid has very low viscosity, तो उसका RE का वैल्यू हाई जाएगा. RE का वैल्यू हाई जाएगा तो 2000 से ऊपर हो जाएगा तो फ्लो विल बी टर्बुलेंट. यानी कि द फ्लूइड्स हैविंग लो विस्कोसिटी, गैसेस की बात करें तो दे विल ऑलवेज हैव टर्बुलेंट फ्लो. सेकेंडली अगर स्पीड ज़्यादा है, V ज़्यादा है तो RE ज़्यादा आएगा. 2000 ज़्यादा हो गया तो टर्बुलेंट फ्लो. यानी फास्टर मूविंग फ्लूइड्स हैव टर्बुलेंट फ्लो. इफ यू वांट स्टेडी फ्लो देन RE शुड बी लेस देन 1000, यानी कि वेलोसिटी शुड बी लो. इसलिए लो फ्लूइड्स मूविंग विद लो स्पीड हैव देयर रेनॉल्ड नंबर बिलो 1000 एंड सो दे आर स्टेडी, दे हैव स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो. ओके तो ये रेनॉल्ड नंबर के बारे में हो गया. क्लियर. एक और बात टर्बुलेंस की है. टर्बुलेंस यानी क्या है कि इफ द लैमिना फ्लो इज ऑकरिंग, अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, जैसे ये लैमिना फ्लो हो रहा है एयर का, सपोज क्या फ्लूइड का, बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, ये ऑब्स्टिकल आ गया बीच में, इट डज नॉट अलाउ, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो रुकेगा. एंड ड्यू टू दिस ऑब्स्टिकल यहाँ पे फ्लूइड थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ेगा एंड दैट कॉजेस टर्बुलेंस. इसको लेंगे टर्बुलेंस. क्यों? क्योंकि फ्लो नाउ नो लॉन्गर रिमेन स्टेडी, इट बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल इन बिटवीन. ये टर्बुलेंस के अपने डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेजेस भी है. ओके दिस टर्बुलेंस हैव देयर एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेज बोथ. ओके ये हो गया रेनॉल्ड नंबर एंड टर्बुलेंस के बारे में. एक और बात यहाँ पे ले रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में. अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है तो उसकी बात करें तो क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर अ फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन, फॉर स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर अ स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो इट इज रिक्वायर्ड दैट RE शुड बी लेस देन 1000, यानी कि रो VD अपॉन ईटा शुड बी लेस देन 1000. बराबर है. अच्छा फॉर अ गिवन फ्लूइड रो एंड ईटा तो कांस्टेंट है एंड D डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज आल्सो फिक्स. तो ऐसे केस में V शुड बी लेस देन सम पर्टिकुलर वैल्यू एंड दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी VC. तो V की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए. क्रिटिकल वेलोसिटी VC से कम होगा तो ही विल गेट स्टेडी फ्लो. यानी V की वैल्यू अगर कम होगी पर्टिकुलर क्रिटिकल वेलोसिटी से, यानी कि डिफाइन करना क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे करेंगे, तो इट्स द मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर हैविंग अ स्टेडी फ्लो. इससे ज्यादा वेलोसिटी तो फ्लो विल नो लॉन्गर रिमेन स्टेडी, इट विल बिकम टर्बुलेंट फ्लो. तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिक्वायर्ड टू हैव स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके तो आप क्या कर सकते हैं अगर क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए तो इस फॉर्मूला में RE को 1000 रख दो एंड कैलकुलेट करो V, तो आपको पता लगेगा कितना क्रिटिकल वेलोसिटी है. उससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो फ्लो विल बी टर्बुलेंट, उससे कम वेलोसिटी है तो फ्लो विल रिमेन स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो. ओके अब हम लोग रेनॉल्ड नंबर का कनेक्टेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. दैट्स इलस्ट्रेशन नंबर.
इलस्ट्रेशन नंबर 10.11, इलस्ट्रेशन 10.11 ले रहे हैं इसके बाद। चलो नेक्स्ट इज गोन फॉर इलस्ट्रेशन 10.11। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर, टैप का डायमीटर दिया 1.25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसे, इज 0.48 लीटर पर मिनट। द क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ईटा दिया 10⁻³ twice, आफ्टर 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड, यू आर गिवन 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड। आफ्टर सम टाइम द फ्लो रेट इज इंक्रीज टू 3 लीटर पर मिनट, कैरेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ द फ्लो रेट्स, यानी दोनों फ्लो रेट के लिए आपको फाइंड करना है विच टाइप ऑफ फ्लो इट विल बी, कैरेक्टराइज मतलब यू हैव टू गिव द टाइप ऑफ फ्लो। ओके चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ कन्वर्जन, ये ऐसे यूनिट आ गया, ये भी ऐसे यूनिट आ गया, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज 0.48, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, लीटर जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ करना होगा। याद रखें 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, कन्वर्जन ऑफ लीटर इंटू मीटर क्यूब, दोनों यूनिट वॉल्यूम के ही है, बराबर है। अपॉन मिनट के बजाय सेकंड लेते हैं, ऐसा सिस्टम में फॉलो करने से 60 आ जाएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी 48/6, ऊपर गया -4, तो विल बी 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके अब दूसरे केस में 3 लीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10⁻³ लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, मिनट को सेकंड में करें, डिवाइड बाय 60, एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.5 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बराबर है। ये वॉल्यूम फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, जिसको हमने v बताया, क्यू से डिनोट किया वॉल्यूम फ्लक्स को यहाँ पे। अब हमें ऑब्टेन करना है टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो कैसे मिलेगा, तो रेनॉल्ड नंबर से, तो हाउ टू ऑब्टेन रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर RE इज इक्वल टू रो VD अपॉन ईटा, डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी दिया नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है, ईटा भी दिया हुआ है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम का प्रॉब्लम है हमारे पास में। डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए वी हैव डायरेक्टली 10⁻³ वाटर फ्लो है, तो डेंसिटी बाय डिफॉल्ट वी हैव 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो रही बात स्पीड की, स्पीड दिया नहीं है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड सब लोग स्पीड ले आते हैं, कैसे, तो वॉल्यूम फ्लक्स, कैपिटल Q इज गिवन एज वॉल्यूम पासिंग पर टाइम, एंड उसका एक दूसरा फॉर्मूला है A इंटू V, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू वेलोसिटी V। नाउ दिस कैन बी रिटन एज πr² इंटू V, ट्यूब में से फ्लो है πr², एंड हमें डायमीटर के टर्म्स में चाहिए, तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर इंटू V, दैट इज पाई d² V/4 इज Q, हमें V चाहिए, तो therefore based on this we can say V is equal to 4Q upon pi d²। ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया, लेट्स से इक्वेशन 1 पुटिंग इनटू, बराबर यहाँ पे रख देते हैं, तो दिस विल बी रो d अपॉन ईटा, V की जगह रख रहे हैं 4Q अपॉन पाई d², कहाँ से आइए, यूजिंग इक्वेशन 1, दिस इज यूजिंग इक्वेशन 1, तो therefore this comes out to be, एक डी उड़ गया बस, और कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, 4 रो Q अपॉन पाई ईटा कैपिटल D। ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला गिवन डेटा के हिसाब से, बराबर है। नाउ केस 1 में Q1 इक्वल टू दिस मच, Q1 इक्वल टू 0.48, सॉरी इट इज 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, रख दे यहाँ पे, तो विल गेट रेनॉल्ड नंबर 4 into density of water 10⁻³ into 8 into 10⁻⁻6 upon pi 3.14 into eta 10⁻³ into diameter 1.25 into 10⁻²। ओके ये सबको अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू रेनॉल्ड नंबर का आ रहा है 815, दैट्स कमिंग 815, and as RE is less than 1000, therefore steady, or you can say streamline flow, steady or streamline flow। okay, second case में similarly Q2 equal to 5 into 10⁻⁻5 लेते हैं, एंड यहाँ रख देते हैं, तो RE की वैल्यू अकॉर्डिंगली
देखें तो क्या आएगा, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻³ इंटू 1.25 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू पुट अप किया एंड आर इन द सेकेंड केस कम्स आउट टू बी 5095 आ रहा है एंड एज आर ई बिगर देन 2000, so therefore turbulent flow, that comes out to be turbulent flow. Okay, तो ये हो गया regarding sum number illustration 10.11 and that completes the section 3 of the chapter, that is viscosity.